Morning students. Last time I discussed with you about the shape of molecules on the basis of Vesper theory. This Vesper theory is restricted to some compounds. Secondly, this theory unable to explain the shape of the molecular orbitals. This theory unable to explain the magnetic behavior, colors, etc. To overcome some of the limitations, balanced form theory, in short we write it as BBT or BB theory, which was provided by Hitler in London and later on modified by the Linus Pauling and others. We start with a very simple compound, that is the formation of hydrogen molecule. These two hydrogen atoms are far away from each other at infinite distance. Only two attractive forces are there, in which the electrons are attracted towards the respective nuclei and no other attractive forces available. Here we plot a graph. This is the position where they have zero energy, and this is the on x-axis the internuclear axis between two hydrogen atoms. The distance between two nuclei is called as internuclear distance. When the distance is very large, have approximately zero energy. When they approach to each other, then in addition to the attraction towards the respective nuclei, another attractive force also develops between the electron and the nucleus of other. And simultaneously some repulsive forces are also developed. They approach to each other, and as I said, since the attractive forces are greater than that of repulsive forces, their release energy becomes less and less negative. At this position, they have a minimum energy. If you bring further closer, the energy shoots up sharply. This is the position. Here, the atoms, hydrogen atom, s orbital है, और they have spherical symmetry. ये position है. क्या हुआ? कुछ कॉमन पोर्शन और इस कॉमन पोर्शन को क्या बोलते हैं? ओवरलैप स्पेस और ओवरलैप रीजन. So the internuclear distance at which the bonded atom have minimum energy is called as bond length. The internuclear distance at which the bonded atom have minimum energy is called as bond length. And the common position of the combining orbital is called as overlap space or overlap region. In this case, there are two repulsive forces: repulsion between the nuclei, repulsion between the electrons. But there are four attractive forces, like attraction of this electron towards this nucleus, attraction of this electron towards this nucleus, attraction of this electron towards this nucleus, attraction of this electron towards it. Because there are two electron, two nuclei. As a result, there are four attractive forces and two repulsive forces. And at this position, the attractive force magnitude dominates over repulsive force, and hence the bond is formed. Thus, on the other hand, in case of He2, if we draw a diagram, the repulsive force magnitude dominates, and hence no molecule formation takes place in case of helium.
तो इन्होंने इसी के बेस पे जब हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना हो कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए जिसके बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और इन ओवरलैप। लीविस थ्योरी में थे आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इसमें आउटर शेल में से भी सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब आपको एस की शेप पता होनी चाहिए, एस स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पी डम्बल शेप, डी डबल डम्बल शेप, वो शेप पता होनी चाहिए, तभी हम ऑर्बिटल की शेप बता पाएंगे। ऑर्बिटल का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ चुका है, द स्पेस और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मेट। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का हो गया। तो इस केस में ऑक्सीजन का 1s2 2s2 3s2 2p1 2pz, well then you will get two half orbital. It means only two half-filled orbital will participate in overlapping or bond formation. जो fully filled हैं, they will not participate in the bond formation. And the participating atomic orbital must approach along internuclear axis. बिल्कुल आमने सामने आए. And they must have opposite spin. क्योंकि लाइक स्पिन में तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। जो भी दो एटम आपके सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट आपस में आमने सामने आते हैं तो क्या होंगे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आएंगे एंड हैव अपोजिट स्पिन। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कितनी ओवरलैपिंग होगी वो डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। क्या मतलब जितना ओवरलैप स्पेस, कॉमन स्पेस ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा and vice versa. And if the overlapping takes place at internuclear axis, then sigma bond will be formed, and if it takes place sideways or laterally, then pi bond is formed. ये basic points हैं। तो अभी से ही हमें उसका आंसर सभी थ्योरी में मिल गया। Why He2 does not exist? The नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है लीविस थ्योरी के हिसाब से, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, अब्सेंस ऑफ हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल, सभी थ्योरी बता रही है। नहीं, सपोज हमें कह दिया जाए कि ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मींस H2। तो हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 1s1. It contains half-filled orbital. The s orbital has spherical symmetrical shape. So one atomic orbital hydrogen combines with another and participate in overlapping and form a step of situation. And this is a common portion, and this common portion is called as overlap space. And when we combine these, तो ये क्या बन गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोनों न्यूक्लियस को जोड़ दिया तो क्या बन गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही हो रही है, इसलिए कौन सा बना बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग टेस्ट है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। और कहेंगे किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है? एस एस वाई एस एस, दोनों ही एटम के एस ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया इन ओवरलैप। ये क्या बनाया मैंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल। इसी ढंग से क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। कोई एक हाफ फिल्ड होगा, आप मान लो इसको 2 करते तो इसको इनमें से कोई एक बंद करना पड़ेगा। जो भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा वही क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग में। तो पी ऑर्बिटल एक ही पी ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, दिस विल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन कंबाइंस विद अनदर ओवरलैपिंग। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। क्या देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल शेप दिखाई है डम्बल,
यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, आउटर लोब छोटे हैं, इनर लोब बड़े हैं। क्यों? ये न्यूक्लियस बॉन्ड किधर बन रहा है? दो एटम के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को मिलने के चांसेस कहाँ हैं? दोनों के बीच में। जितने बॉन्ड बीच में बन रहा है और इलेक्ट्रॉन पहले तरफ हो, फिर तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और ऑर्बिटल के डेफिनेशन क्या है? द स्पेस और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इस वजह से ये पोर्शन बड़ा दिखाया। इधर प्रोबेबिलिटी कम है और इसलिए प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन कम है, इसलिए ये लोब्स छोटे हैं, सिमेट्रिकल लोब। किस टाइप की ओवरलैपिंग हुई? क्योंकि दोनों क्लोरीन के प्योर रिटर्न में पार्टिसिपेट किया है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज द मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ Cl4। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का तो हमें पहले ही पता है कितने हाफ ब्रेड हैं? 2p/1 एंड 2p/z1। तो y and z axis are mutually perpendicular to each other. They are double shape है and they are perpendicular to each other. तो ये क्या बन गया? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। both are half है, they participate in overlapping। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो जो आमने सामने आए इन्होंने क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। और ये क्या करेगा? ये तो डिस्टेंस है। बॉन्ड कब बनेगा? जब शेयरिंग होगी, आपस में कंबाइन करेंगे। तो क्या करते हैं? धीरे धीरे इनको नज़दीक लेके आते हैं और इस ढंग से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी वो इस ढंग से होगी। तो अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखता हूँ तो ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या बना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ? सिग्मा। लेकिन ये ओवरलैपिंग तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ? पाई। ये पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड is concentrated at a same place while pi bond is distributed at two places, above and below the plane or front and back up. In this way, this यहाँ पे दोनों ही pp ऑर्बिटल बने। और क्या पता चला? हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज नॉट essential, but for formation of pi bond first sigma bond formation is essential। ये जरूरी है। sigma bond is stronger because it is पे internuclear axis है, overlap एवोल्यूट ज़्यादा है। यहाँ पे तो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। जब भी तोड़ने की कोशिश करोगे पहले हमेशा पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटेगा। पीपी ओवरलैपिंग हो रही है और in terms of a pi electron density हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? pi electron cloud इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज pi electron cloud। बनाना शेप above and below the plane। ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया दो एटम के बीच में। ये बनाना शेप above and below the plane। और इस ढंग से ये क्या बना दिया?
मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। O2 का मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया MO of O2। But in case of nitrogen, 7 1s2 2s2 2p x1 2p y1 and 2p z1. There are 3 half-filled orbitals. 3 half-filled orbitals which are perpendicular to each other, and they are involved in bond formation. Half-filled orbitals are always involved in bond formation. तो इसका atomic orbital कैसे बनेगा? EO of nitrogen atom. It combines with another. ये क्या करेंगे? आमने सामने होंगे। They must have opposite spin. कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में। और जो ये है ये क्या बना है इसमें? पाई। अभी भी एक बचा है। अब ये भी क्या बनाएगा? पाई। ये भी पाई, ये भी पाई। 1 सिग्मा एंड 2 पाई। लेविस थ्योरी में यही कह रही थी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या पता चली? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस ढंग से दिखाना पड़ेगा? किस ढंग से दिखाना पड़ेगा? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया। क्यों? क्यों? वहां पे तो बनाना शेप था। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रंट एंड बैक। तो ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या ले लेगा? एक सिलेंड्रिकल ले लेगा। बिल्कुल आपका पेन के रिपल बीच में आ गई ये वाली, और ये आउटर शेल आ गया जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे, फ्रंट एंड बैक। ऑलमोस्ट क्लाउड सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में बनाना शेप। क्या हेटेरोटॉमिक भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लाइक HF, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1s1 and chlorine 1s2 2s2 2p x2 2p I2 2p z1। तो इसमें एक हाफ ऑर्बिटल मिल रहा है। कौन सा? ये वाला। और इसमें ये हाफ ऑर्बिटल। तो ये किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल तो सिलेंड्रिकल शेप आ गई, तो सॉरी स्फेरिकल शेप आ गई। और p क्या? इसके अंदर डम्बल शेप आ गई। तो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या हुआ?
या डम्बल सिमेट्रिकल था, आउटर लोब छोटा, इनर लोब बड़ा। ये सिलेंडर है तो ये सेंटर में नहीं रहा, इधर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर होगी, तो ये तो यहाँ पे ये क्या, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp ओवरलैपिंग। और इस ढंग से दिस बिकम्स द MO ऑफ HF, इस ढंग से। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मोर देन 2 एटम्स में क्या होगा, उसके अंदर क्या डिफिकल्टीज आएंगी, उसको कैसे ओवरकम करेंगे, इस कंसेप्ट को साथ में यूज़ करके उसको नेक्स्ट टाइम पे इसको थॉरोली रिवाइज करेंगी, और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे।